ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یاد رکھنا، زندگی بے منزل راستہ ہے۔ اپنے آپ میں کامل چیز کا نام ہے زندگی۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تم لوگوں نے پہلے ہی سے مان لیا ہے کہ رستہ ہے تو منزل ہونی چاہیے، مگر یہ سمجھو کہ رستہ بے منزل بھی ہو سکتا ہے، رستہ خود منزل بھی ہو سکتا ہے، بلکہ کہنا ہی یوں چاہیے کہ رستہ ہی منزل ہو سکتا ہے۔ تمہارے ذہنوں میں مگر یہ بات آ نہیں سکتی، اس لیے تم منزلوں پر منزلیں تراشتے چلے جاتے ہو۔ لیکن کیا کوئی بھی منزل حقیقت میں منزل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ سوال تو فوراً اٹھ جاتا ہے کہ پھر اس منزل کی کیا منزل ہے؟ اصل میں زندگی کو مقصد سے جوڑنا، اصل میں زندگی کو مقصد سے جوڑے بنا انا خود کو تسلسل نہیں دے پاتی، کنٹینیوٹی نہیں رکھ پاتی۔ انا تمہاری ریئلٹی کا جھوٹ ہے، سراب، جھوٹی خودی، ایسا سراب جس تک پہنچ جاؤ تو سراب کچھ اور آگے سرک جاتا ہے، جیسے صحرا میں ریت سرکتی جاتی ہے۔ جب تک صحرا میں پانی کے سراب کے پیچھے بھٹکتا شخص تڑپ تڑپ کر مر نہیں جاتا، ریت آگے سرکتی رہتی ہے۔ ریت میں نظر آ رہا پانی آگے سرکتا رہتا ہے۔ انا کی ضرورت ہے مقصد، مگر سیلف کی، زندگی کی قطعی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خودی، ہستی، بینگ کے کوئی مقاصد نہیں ہے۔ دیکھتے ہو بچوں کو کھیل کھیلتے ہوئے، کیا مقصد ہوتا ہے ان کا؟ مگر یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، مائنڈ بن جاتا ہے، انا تخلیق ہو جاتی ہے اور مقاصد کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ کھیل بھی کھیلیں تو کھلاڑی بننا ان کا مقصد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذہن میں بٹھا لو کہ انا جتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، مقاصد کی لگن اتنی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ انا کا انداز حاکمانہ ہوتا ہے۔ انا سجیشنز کی، تبلیغ کی زبان بولتی ہے۔ اسی لیے تو تم لوگ بچوں کو سکھاتے ہو یہ زبان۔ بچہ مقصد سے آزاد پیدا ہوتا ہے، مقصد سے آزاد زندگی جیتا ہے۔ مقاصد تو انہیں تم لوگ دیتے ہو، سوسائٹی دیتی ہے، گھر دیتا ہے۔ کوئی بچہ کھیل رہا ہو، اس سے جا کر ذرا پوچھیں کیوں کھیل رہے ہو؟ تمہارا سوال اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا، تمہارا سوال انہیں احمقانہ لگے گا۔ ان کی نظر میں اس سے لا یعنی سوال ہو ہی نہیں سکتا۔ کھیلنا خود اپنی ذات میں مقصد ہے۔ تم لوگ تو اپنی بنیادی نیچر کے ایسے باغی ہو کہ کھیل بھی کھیلو تو اس کھیل میں بھی مقصد جوڑ لیتے ہو۔ بچہ کھیل رہا ہے تو کھیلنا خود اپنے آپ میں انف ہے۔ کھیل سے باہر اس کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے۔ کھیلنا ہی سکون ہے، کھیلنا ہی مسرت ہے، کھیل ہی خوشی ہے۔ انہیں کھیل سے کچھ اور ملے گا وہ یہ سوچتے ہی نہیں، انہیں کھیلنے میں ہی وہ سب مل جاتا ہے۔ ان کے لیے کھیلنا ہی ملنا بھی ہے، کھیلنا ہی مقصد بھی ہے، کوشش بھی ہے۔ لیکن تم لوگوں کی دنیا ایسی ہے کہ ایسا بچہ زندگی کے کھیل کے قابل تصور نہیں کیا جاتا۔ اس لیے بچوں کو کھیل سے باہر لانے کی کوشش میں جٹے رہتے ہو، پڑھاتے ہو، اس لیے نہیں کہ گیانی ہو جائیں، اس لیے کہ کل انہیں نوکری مل جائے، اس لیے پڑھاتے ہو کہ کل دولت کما سکے۔ تم اسے کھیل کی اس دنیا سے باہر کھینچتے ہو جہاں مقصد ہمیشہ اس پل میں ہوتا ہے، لمحہ موجود میں ہوتا ہے، اور اس دنیا میں لے آتے ہو جہاں مقصد ہمیشہ کل میں ہوتا ہے اور کام آج ہوتا ہے۔
जहां एक्शन और नतीजे दो अलग मकामात पर होते हैं। एक्शन और नतीजे एक मकाम पर हों तो जिंदगी खेल जैसी लगती है। कल यही बच्चा डॉक्टरी पढ़ेगा या इंजीनियरिंग, तो ये नहीं कहेगा कि मैं पढ़ने में मजा ले रहा हूं, वो कहेगा कि झेल रहा हूं, मुश्किल है, कष्ट है, सह रहा हूं। लेकिन कल में उम्मीद है कि इस पढ़ाई से कोई नौकरी मिलेगी, पैसे आएंगे तो खुशी मिलेगी, लुत्फ मिलेगा। वो सिर्फ इम्तिहान की तैयारी के लिए पढ़ेगा, क्योंकि ये सोच के बैठा है कि इम्तिहान के उस पार जीवन की जंगगाह में उतरूंगा तो आसानियां हों। तुम लोगों की बस यही कोशिश रहती है कि हर बच्चे को इस पल में जिंदा रहने की लज्जत से निकाल कर मुस्तकबिल के लिए जीने की कुल्फत में झोंक दो। तुम्हारी तालीम और तालीमी निज़ाम की बुनियादें इसी पर तो खड़ी हैं, और तुम लोगों ने ये मान लिया है कि ये मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। और ऐसा सिस्टम तुम लोगों ने खड़ा कर दिया है कि अगर कोई बच्चा इस तर्ज पर ना जिए, इस तरीके पर ना चले, तो वो समाज का हिस्सा बनने के काबिल ही नहीं रहता। मकसद का सीधा साधा एक ही मतलब होता है, आज का जीना कल पर कुर्बान कर देना। मकसद के लिए जीने का मतलब है अपने इस पल को आने वाले किसी पल पर कुर्बान कर देना। और मजे की बात यह है कि जिस आने वाले पल के लिए तुमने ये पल कुर्बान किया है, कल जब उस पल को जीने के लिए तुम पहुंचोगे तो उस पल को भी किसी और पल पर कुर्बान करोगे, क्योंकि इस पल को आने वाले पल पर, मुस्तकबिल पर कुर्बान करना अब तुम्हारी आदत बन चुका होगा। जो बच्चा खाही न खाही डॉक्टरी पढ़ रहा है, चाहे न चाहे पढ़ रहा है, नौकरी के लिए पढ़ रहा है, क्या ख्याल है कि नौकरी मिलने के बाद वो कोई और मकसद, कोई और ख्वाब नहीं बुनेगा? यकीन मानो अब उसके मकसद, उसके ख्वाब और भी बड़े होंगे। तो जानिए, जब कल तुम्हारे पास आएगा वो आज होगा, और तुमने आज को कल पर कुर्बान करने की आदत बना रखी होगी, तो उस वक्त भी तुम उस आज को कल पर कुर्बान करोगे ही। ये वो चक्कर है जिसमें तुम पड़ गए हो। तुम पूरा जीवन कुर्बान कर देते हो एक भूत जैसे ना पकड़ में आने वाले कल के लिए, और आखिर में पाते हो कि तुम्हारे पास मौत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। तुम सब अपनी जिंदगी को ऐसे ही खोते हो। जिसे तुम आज आज कह रहे हो, ये भी कल ही था। तुमने कल अपना आज खोया था आज के लिए, और आज खो रहे हो अगले कल के लिए। जरा हिसाब लगाइए, क्या ऐसा नहीं है? तुम कल के कल को भी खोओगे किसी और आगे के कल के लिए, और ऐसे तुम वक्त को खोते जाओगे उस वक्त तक जब तक ये ना पालो कि तुम्हारे दामन में ख्वाहिशों की राख के सिवा कुछ भी नहीं बचा। मकसद तो कोई पूरा होता नहीं, हाँ, इस प्रोसेस में जिंदगी खो जाती है। सूफी पता है क्या कहता है? सूफी कहता है कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। मौलाना रूमी कहते हैं सूफी लम्हे मौजूद का बेटा होता है, उसका ना पास्ट होता है ना फ्यूचर, बस यही एक पल उसका होता है। इस पल से तुम एक पल के लिए गाफिल हुए तो जिंदगी से महरूम हो गए। इस पल में किसी कल का ख्वाब बनोगे तो वो जिंदा पल मुर्दा पल में ढल जाएगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पल तुमने इसी दुनिया में कोई महल खड़ा करने के ख्वाब में गुजारा या किसी और दुनिया में जन्नत का महल खड़ा करने के ख्वाब में गंवाया। सोचो, क्या इस पल को इस पल में नहीं जिया जा सकता? क्यों ये पल इतना भारी पत्थर हो गया कि तुम उठा ही नहीं पा रहे? तुम्हारी अना है इसकी वजह। ये बात शायद तुमको हजम ना हो, मगर इससे बड़ी कोई हकीकत तुम्हारी जिंदगी में है नहीं। अना और जिंदगी एक दूसरे के दुश्मन हैं। अना होगी तो जिंदगी ना होगी, और जिंदगी होगी तो अना ना होगी। अना होगी तो सवाल होंगे मगर कोई जवाब ना होगा, जिंदगी होगी तो कोई सवाल ना होगा। किसी सूफी से एक मुरीद ने पूछा, कब मुझे पता चले कि इनलाइटनमेंट की मंजिल मुझे मिल गई? उसका जवाब पता है क्या था? जवाब था, जब ये सवाल भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। आज में जीने का मतलब ये नहीं कि कल जो ट्रेन पकड़नी है उसका टाइम टेबल तुम आज नहीं देख सकते।
इसका यह भी मतलब नहीं कि 1 साल बाद जो फैक्ट्री तुमने लगानी है उसकी मंसूबा बंदी आज नहीं कर सकते। लोगों से ये बातें करें तो बड़े सवाल उठाते हैं। लोग कहते हैं अगर कल का आज तय ना किया तो कल क्या होगा। इस बात को समझने की कोशिश करो। सिर्फ रेडीमेड सवाल ना दोहराते रहो, सोसाइटी के सीखे सवाल ना करते रहो। कल सुबह तुमने जो ट्रेन पकड़नी है उसके बारे में इस वक्त सोच रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, तो ये सरगर्मी लम्हे मौजूद की सरगर्मी है। तुम इस पल में तय कर रहे हो तो इस तय करने में भी उतना ही लुत्फ लो, क्योंकि तय करना खुद एक एक्ट है और हर एक्ट जो तुमसे हो उससे तुम्हें लुत्फ मिलना चाहिए। किसी भी चीज को फैसले तक ले जाना खुद एक पुरलुत्फ चीज है। तो कल सुबह जो तुमने उठकर ट्रेन पकड़नी है उसके अभी के फैसले को भी एक्ट समझो, उससे भी मजा लो, क्योंकि ये इसी पल का फैसला है, इसी पल का मजा लो। कल सुबह उठकर उठने का मजा लेना, इस पल में कल सुबह उठने के फैसले का लुत्फ लो। लेकिन अगर आज का पल इसलिए परेशानी में बीत गया कि कल सुबह 5 बजे उठना है और कल सुबह उठने के बाद उससे आगे की परेशानियों में उलझ गए, तो सोचो क्या ये है तुम लोगों के ज़हीन और अशरफुल मखलूक होने का एजाज कि अपना हर पल आगे आने वाली परेशानी की परेशानी में ढालकर माजी बनाते जाओ। लम्हे मौजूद में रहने का ये मतलब नहीं कि मंसूबे ना बनाओ। लम्हे मौजूद में रहने का मतलब है कि मंसूबे बनाना तुम्हारी जिंदगी नहीं है, जिंदगी तुम्हारी जिंदगी है और जिंदगी जीना अभी और यहाँ है, इसी पल में। हयात सिर्फ इसी एक पल में मुमकिन है। किसी आने वाले या किसी गुजरे पल में जीना नामुमकिन है। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो किसी चीज को मकसद बनाकर जीते हैं और एक वो होते हैं जिनके कोई मकासद नहीं होते, जिनका लम्हे मौजूद में हो रहा हर काम, जीते हुए बीतता हर लम्हा मकसद होता है। लेकिन यहाँ ये जहन में रख लो कि इन बेमकसद जीने वालों को उनसे ना मिला देना जो सुस्तुल वजूद हैं, काहिल हैं, जो पड़े हैं, धक्के खा रहे हैं। जहां जिंदगी उन्हें धक्का दे दे उसी तरफ चल पड़े। वो जिसने जिंदगी को अपने हाथ में लेने की कोशिश ही नहीं की, जो हवा में उड़ते पत्ते की मानंद है कि हवाएं जहां चाहें उन्हें ले जाएं। एक तो बेमकसद जीने वाला ये है। इसके मुकाबले में मकसद को सामने रखकर जीने वाला वो है जो 24 घंटे किसी मंजिल की लगन में दौड़ रहा है। वही जिन्हें तुम्हारी दुनिया ज़हीन, समझदार, पैशनेट और पुरअज़्म कहती है, जिनकी कहानियां तुम बच्चों को सुना सुना कर बच्चों में मकासद पालने का मर्ज भरते हो। कभी गौर किया कि ये शख्स कर क्या रहा है? ये अपने हर मौजूदा पल को किसी अगले पल पर कुर्बान कर रहा है, जो हमेशा इन्वेस्ट कर रहा है, आज को कल पर, कल को परसों पर लगा रहा है और मौत के वक्त तक खुद के साथ उसका ये खेल जारी रहता है। मैं तुम्हें बताऊं कि इस आदमी के मुकाबले में वो बेमकसद सुस्तुल वजूद शख्स फिर भी कुछ न कुछ जिंदगी का ज्ञान पा लेता है। लेकिन जिस बेमकसद जीने की मैं बात कर रहा हूं वो बेमकसद जीना है जिसकी बात लाओ त्सु किया करता था। ये एक तीसरे ही आदमी की बात है। इसकी जिंदगी को बेमकसद जिंदगी कहने से ज्यादा बेहतर टर्म है मकासद से आजाद जिंदगी। ये वो शख्स है जो न सुस्तुल वजूद है, न किसी मकसद के पीछे पागल, ना वो जिंदगी के मंसूबे रखता है। वो दौड़ता है मगर दौड़ को जीतने के लिए नहीं दौड़ता, कि वो हर कदम का मजा लेने के लिए दौड़ता है। उसकी दौड़ किसी मकसद, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि खुद वो दौड़ ही उसका मकसद है। इस तीसरी किस्म के आदमी को कभी नाकामी नहीं मिल सकती, ये कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि कभी ये तवक्को ही नहीं बांधता। ये अपने हर पल को पूरी ताकत के साथ जीता है। ये वो शख्स है जो जिंदगी के हर पल का रस निचोड़ लेता है। ऐसा आदमी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर यह नहीं कहेगा कि मेरी जिंदगी बेकार गई, मैं पहुंच नहीं पाया। ये उसका मसला ही नहीं, क्योंकि उसने कभी कहीं पहुंचने की कोशिश ही नहीं की।
یہ وہ آدمی ہے جو بستر مرگ پر کہتا ہے کہ میں نے زندگی کا پل پل جی لیا۔ یہی وہ آدمی ہے جو موت کو بھی ہنستے ہنستے گلے سے لگا لے گا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے آدمی کو جینے سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ موت کو بھی یہ جی لیتا ہے۔ اس کے لیے موت بھی زندگی کا ایک واقعہ بن جاتی ہے، خاتمہ نہیں، کیونکہ اس کی عادت یہی تھی، جو بھی اس کے سامنے آیا اسے جیا، اسے جو ملا اسے پورا بھوگا۔ آگے پیچھے کے حساب سے یہ شخص بے نیاز رہا۔ یہ یاد رکھو، دوڑا یہ بھی بہت، بلکہ شاید ان سے بھی زیادہ دوڑا جو منزل بنا کے دوڑ رہے تھے۔ سمجھو، جب منزل کا بوجھ سر پر اٹھا کر دوڑنا پڑے تو پیر من بھاری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ کسی مقصد کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں تو چلنا ان کے لیے تھکن بن جاتی ہے۔ کبھی تم نے سوچا، صبح جس راستے پر تم واک کرنے کے لیے جاتے ہو، دوپہر کو اسی راستے سے دفتر کے لیے نکلتے ہو، پیر بھی وہی ہوتے ہیں، راستہ بھی وہی ہوتا ہے، آسمان اور زمین بھی وہی ہوتا ہے، لینڈسکیپ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن صبح چال اور تھی، دفتر جاتے ہوئے دوپہر کو تمہاری چال اور ہو گئی۔ کیا فرق پڑا؟ سبھی کچھ تو وہی ہے، فیلنگز کیوں بدلی ہوئی ہیں؟ بس ایک فرق ہے کہ اب کہیں پہنچنا ہے۔ صبح واک کے لیے گئے تھے تو کہیں پہنچنا نہیں تھا، چلنا کافی تھا، چلنا مقصد تھا۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو صبح کی واک کو بھی بوجھل بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہوتا ہے، جنہیں 5 بجے صبح سے 6 بجے صبح تک واک کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ لوگ واک سے بھی تھک جاتے ہیں، کیونکہ ان کے 5 بجے کو 6 بجے تک پہنچنے کی منزل پانی ہے۔ ان کی واک بھی دفتر پہنچنے جیسی ڈیوٹی بن گئی۔ ایسا شخص واک سے لوٹے گا تو ٹائم ٹیبل کو ٹک کر کے کہے گا کہ چلو ایک کام سے چھٹکارا ملا، ایک اور کام پورا ہوا۔ یاد رکھو، جہاں مقصد ہے، کہیں پہنچنا ہے، وہاں بوجھ لازم ہے۔ اور جب مقصد کہیں پہنچنا نہ ہو بلکہ چلنا ہی خود مقصد ہو تو اس چلنے کا بوجھ نہیں ہوتا۔ تم زندگی کو نہیں دیکھتے کہ جو بھی کم بوجھ لیے چل رہا ہو اس کے سکھی ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ بوجھ لے کر کوئی چل رہا ہو اتنا زندگی بوجھل لگتی ہے۔ زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ بس کسی طرح گزارنی ہے، مگر تم لوگوں کا المیہ ہے کہ تم کسی بھی شعبے میں جاؤ، کسی بھی ریس میں دوڑو، کوئی بھی کام کرو، اس میں فوراً سے پہلے مقاصد بنا لیتے ہو۔ تمہارا ذہن مقاصد کے بوجھ سے ہر دم بوجھل ہے۔ زندگی تمہارے دماغ کے باکس تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ صوفی کہتا ہے، پورا جیون ایک کھیل ہے، مگر تم وہ لوگ ہو کہ کھیل جیسی بے مقصد چیز میں بھی مقصد ڈھونڈ لیتے ہو۔ کبھی غور کرو، کوئی کھیل بھی جب تم کھیل رہے ہوتے ہو تو چہرے پر جو تناؤ ہوتا ہے، جو کھچاؤ ہوتا ہے، وہ بالکل وہی ہوتا ہے جو کام کے دوران تمہارے چہروں پر رہتا ہے۔ دیکھا نہیں کہ 2 لوگ تاش کھیلنے بیٹھے تو تاش سے انہیں مزہ نہیں آتا جب تک کچھ روپے اس پر شرط نہ لگا بیٹھیں، کیونکہ روپے شرط لگاتے ہی کھیل کام بن جاتا ہے۔ کھیل میں پیسے کے آتے ہی کھیل میں مقصد آ جاتا ہے۔ چاہے کوئی کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، وہ 10 روپے کی شرط لگا کر تاش میں بھی مقصد ڈھونڈ لے گا۔ 10 روپے جیت کر اسے کچھ ملے گا نہیں، لیکن اس نے خود کو اس خیال سے راحت دے لی کہ اب کھیل میں بھی کوئی مقصد ہے۔ جیسے ہی کھیل میں پیسہ آتا ہے تو اس وقت ہی تمہاری انا کھیل میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ تم لوگوں کے لیے کھیل میں لطف نہیں، 10 روپے نے آ کر کھیل میں جان ڈال دی۔ سوچو، روپیہ تمہاری روح کے خلیے میں کس حد تک رچ بس چکا ہے کہ اسے کھیل میں بھی نہ ڈالو تو کھیل بیکار۔ تم لوگ وہ ہو جو یہ چاہتے ہو کہ ہر چیز کام بن جائے، دھندا بن جائے، ہر چیز میں مقصد ہو۔ مقصد آخر ہے کیا چیز؟ مقصد کا بس مطلب اتنا سا ہے کہ ہر کام کسی اور چیز کے لیے کیا جا رہا ہے۔
वो काम बस उसी काम के लिए नहीं हो रहा, इट इज जस्ट अ मीन। मजा तो उस चीज के पाने में है जिस चीज के पाने के लिए काम कर रहे हो। ये काम तो महज मजबूरी है। तुम वो लोग हो जो किताब को भी पढ़ते हो इसलिए कि डॉक्टर, इंजीनियर, CSP ऑफिसर बन सको। फर्ज करो कि तुम्हें बिना किताबें पढ़े ये ओहदे, ये नौकरियां मिल जाती, तो तुम इन किताबों को भी हाथ ना लगाते। तुम्हें लुत्फ किताब में नहीं, उसमें मौजूद इल्म में नहीं, बल्कि उस चीज में है जो वो इल्म हासिल करने के बाद तुम्हें मिलेगी। और क्योंकि तुम लोगों ने सोच लिया है कि बिना काम किए मकसद नहीं मिलता, इसलिए तुम हर काम को मकसद से जोड़ देते हो। तुम वो लोग हो कि मोहब्बत को भी काम बना सकते हो। माँ अपने बेटे की खिदमत कर रही है तो उसको भी मकसद का रूप दे लेती है, उसे भी जिम्मेदारी बना लेती है। शौहर अपनी बीवी के लिए नौकरी कर रहा है तो इसको भी जिम्मेदारी में ढाल रहा है। सुनते नहीं हो लोगों के डायलॉग, बाल बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारी है, इसे निभाना है। लेकिन कभी खुद से पूछो कि अगर कोई जिम्मेदारी है जिसको निभाना है तो घर है कहाँ? जान लो ये घर नहीं है, दुकान है। घर का तो मतलब ही सुकून है। अगर शौहर इसलिए काम कर रहा है कि एक बीवी है जिसे पालना है तो ये जिम्मेदारी है। अगर माँ बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही है और सोच रही है कि जिम्मेदारी है, काम है जिसको करना है, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे इसी माइंड सेट ने तुम्हारी जिंदगी के हर हसीन से हसीन तजर्बे को, हर हसीन से हसीन चीज पर गम की चादर लपेट दी है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी खेल नहीं रहा, कोई भी चीज तुम्हारी जिंदगी में ऐसी नहीं रही कि जिसको करते हुए तुम हर एंजाइटी, हर फिक्र, हर जिम्मेदारी से खुद को आजाद महसूस कर सको। एक पल को भी तुम वहां मौजूद नहीं रह सकते जहां तुम हो। हमेशा ज़हन कहीं और होता है। सवाल ये है, क्या जिंदगी बिना किसी मकसद, बिना किसी जिम्मेदारी के नहीं जी जा सकती? सूफी पूछता है कि क्या एक बादशाह भी बादशाह की सारी सरगर्मी को एक खेल नहीं बना सकता? और फिर जवाब देता है कि चाहे वो तो ऐसा कर सकता है, सिर्फ एक काम करके, मकासद को छोड़ के। मगर तुम लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। तुम लोग ये सोचते हो कि मकासद छोड़ दिए तो तुम बैठ जाओगे, कुछ करोगे क्यों? तुम लोग ये समझते हो कि मकसद छूटा तो करना ही खो जाएगा, डूएंगी, एक्शन ही खो जाएगा। लेकिन गौर से देखना, तुम ह्यूमन डूइंग नहीं हो, तुम ह्यूमन बीइंग हो। तुम सोचते हो कि मकसद ना हुआ तो तुम कुछ करोगे ही नहीं, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी बिताई ही ऐसे है कि कभी कुछ बेमकसद किया ही नहीं है। तुम्हें एक राज बताऊं, ये समझ आ गया तो जिंदगी फिर वैसी नहीं रहेगी जैसी है। तुम बिना किसी मकसद के जो पल जियोगे वही पल तुम्हारी जिंदगी के वो पल हैं जो जिंदा हैं, जो राहत और मुसर्रत से भरे हैं। कोई शख्स है, दरिया किनारे खड़ा है और सनसेट का मजा ले रहा है। अचानक उसने देखा कोई शख्स है जो दरिया में डूब रहा है और अचानक ही उसको बचाने के लिए उसने छलांग लगा दी। न सोचा कि इसका मकसद क्या है, न सोचा कि जिसको बचाने जा रहा है वो कौन है, हिंदू या मुसलमान, अपना या पराया, कल को काम आएगा कि नहीं, बस छलांग लगा दी। ऐसे शख्स को एक झलक मिल सकती है बेमकसद कुछ करने की लज्जत की, मगर इसके मुकाबले में डॉक्टर रोज लोगों की जानें बचाता है, लेकिन वो राहत, वो लज्जत, वो पीसफुलनेस उसे नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसके एक्शन पर जिम्मेदारी का बोझ लदा है। डूबते को बचाने के लिए दरिया में कूदने वाले ने सिर्फ एक जिंदगी बचाई, मगर उसे राहत मिली। क्यों? क्योंकि उसके एक्शन पर मकसद की सिल नहीं रखी थी। ये एक सादा सा राज है, मगर तुम्हें समझ आएगा नहीं, बल्कि तुम लोगों ने तो जो समाज तामीर कर लिया है उसमें तुम्हारी हालत ये है कि अगर बिलफर्ज डूबते को बचाने वाले तुम होते और उसे बचा लेते तो उससे मिलने वाली राहत से लुत्फ लेने की बजाय उस लुत्फ को गरत करने पर तुल जाते, फौरन स्टोव में लग जाते कि जिसको बचाया वो शुक्रगुजार भी है कि नहीं, एहसान मंदी के एक्सप्रेशन भी दे रहा है कि नहीं, अखबार में खबर छपेगी कि नहीं, टीवी इंटरव्यू होगा कि नहीं, कोई देखने वाला आसपास है कि नहीं।
जिसने तुम्हारा ये कारनामा अपनी आंखों से देखा हो। काश तुम लोग ये समझ सकते कि जब किसी भी काम में बिना उसके नतीजे उसकी मंजिल का तयन किए डूब जाते हो तो वही काम सूफियाना मेडिटेशन बन जाता है। मगर तुम लोग तो वो हो कि मेडिटेशन भी करो तो उसमें भी मकसद जोड़ देते हो। इससे कामयाबी मिलेगी, इससे सेहत मिलेगी, इससे फोकस बढ़ेगा, मैं ज्यादा तरक्की कर पाऊंगा। तुम लोगों की मेडिटेशन भी अब एक इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। तुम्हारे जहन में ही कभी ये बात नहीं आती कि मेडिटेशन का किसी मकसद से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं। हत्ता कि ये कहना भी गलत है कि मेडिटेशन से सुकून मिलता है। इसका ये मतलब नहीं कि मेडिटेशन से सुकून नहीं मिलता, मेडिटेशन से ही सुकून मिलता है। लेकिन जो सुकून के लिए मेडिटेशन करेगा, इबादत करेगा, वो इबादत कर ही नहीं सकेगा। जो सिर्फ मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन करता है, इबादत के लिए इबादत करता है, हाँ उसे जरूर सुकून मिलता है। जो काम के लिए ही काम करे वो सुकून जरूर पाता है। जो इसी पल में पूरे का पूरा होता है, जिस पल में वो है वो पीसफुल होगा ही। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, और क्या ही शानदार बात कहते हैं, सूफी लम्हे मौजूद का बेटा होता है। और बुजुर्ग कहते हैं कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। वो सांस जो अगली सांस के ख्याल में गुजरी वो सांस है ही नहीं। वो पल जो किसी अगले या गुजरे पल में फंस गया वो पल तुम जिए ही नहीं। जो अपने एक्शन में कामिल है, जिसका एक्शन मकसद से पाक है, जिसका हर फेल अपने आप में मुकम्मल है, कामिल है, कोई जिम्मेदारी नहीं, उसकी फिर पूरी जिंदगी मेडिटेशन है, उसकी पूरी जिंदगी इबादत है। डर की नेचर क्या है असल में, और इतने भी डर है इंसान के अंदर, ये सारे के सारे इंसान एक ही दफ़ा सामने कैसे आ सकते? नहीं, सामने कैसे आ सकते हैं, ख़त्म कैसे हो सकते हैं? इंसान को देखेगा तभी तो ख़त्म होंगे। मगर डर को भी ख़त्म क्यों करना है? और से तरह देखें ना पूरी स्कीम को। एक चीज़ है तो उसका कोई मकसद है, कुछ है तो वो उसे मंजूर हुआ है, जिसके चाहने से सब हो रहा है, वो उसकी स्कीम में कोई जगह रखता है तो मौजूद है। इंसान ने एवोल्यूशन का जो ये सफ़र तय किया है, जो बका की जंग लड़ी है, उसमें डर अहम तरीन फैक्टर रहा है। आप दरिंदों से डरते ना तो मारे जाते, स्पीशी आपकी मिट जाती। सर्वाइवल के लिए जो मोटिवेटिंग फैक्टर थे उनमें सबसे बड़ा मोटिवेशन था डर, फना का डर। क्योंकि बेसिक डर जिसको आप जीते हैं वो एक ही है, फना का डर, मौत का डर है। बाकी सारे उसके बच्चे हैं। रोज़गार के डर से मुराद क्या है, बीमारी के डर से मुराद क्या है, एक्सीडेंट के डर से मुराद क्या है, बुलंदी के डर से क्या मुराद है, पानी के डर से क्या मुराद है। सारे डरों के पीछे एक ही डर बैठा है, मिट जाने का डर। और ईगो अपनी सारी स्ट्रेंथ इसी डर से लेती है। एक मज़े की बात बताता हूँ मैं आपको। इंसान के डर जब ओरिजिनल थे, इंसान शुरू में जब एवोल्यूशन की दौड़ रहा था ना, उसे बका के लिए दौड़ना पड़ रहा था बाकायदा। गार में छुपा बैठा था, भूख का डर था, मौसम का डर था, बर्फ़ पड़ती थी उसका डर था, गर्मी पड़ती थी उसका डर था। बाहर दरिंदे घूम रहे थे और ये उनसे लड़ने में नाकाम हो रहा था, उनसे छुपता फिर रहा था। वो डर जो थे ना वो ओरिजिनल थे, ऑन ग्राउंड थे, सामने थे। अच्छा, उसके मुताबिक जिस्म रिस्पॉन्स करता था। आपने भागना है या लड़ना है, ये दो फैसले करने होते थे उस डर के नतीजे में। ये सामने शेर आ गया, आपने क्या करना है? भागना है, भागने के लिए जिस्म को तैयार करता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो गई, बीपी शूट कर गया, सारा कुछ हो गया, भागे। लड़ना है, उसके लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत है, वो जिस्म तैयार करता था, मसल सख्त कर देता था, कड़ाव पैदा कर देता था, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। अब रियल डर था, रियल रिस्पॉन्स था बॉडी का, और रियल एक्शन उसके नतीजे में हैपन होता था, या आप भागते थे या लड़ते थे। ये सारी चीज़ प्रॉपर किसी भी जानदार के साथ जैसे होती है वैसे होती थी इंसान के साथ। अब ये दौर आपने एक लंबे अरसे तक जिया, उसके इम्प्रिंट्स डीएनए में छप गए। फाइट और फ्लाइट का जो है ना, आपके डीएनए पे लिख दिया गया। आज के दौर को अगर आप सामने रखें ना, तो कोई रियल थ्रेट नहीं है। बाहर सड़कों पे दरिंदे नहीं घूम रहे, भूख प्यास का ख़तरा नहीं है, मौसमों से बचने के लिए आपने सूटेबल मकान बनाए हुए हैं। आपके पास रियल थ्रेट नाम की कोई चीज़ नहीं है।
अब आपने बनाए हैं नकली दरिंदे, नकली शेर, नौकरी चली गई, कारोबार डूब गया, वो लड़की ना मिली, वो लड़का ना मिला, मैं ताकतवर ना हुआ, मैं मशहूर ना हुआ, मैं कामयाब ना हुआ, तो अब ये नकली डर है। जिस्म की जो फिजियोलॉजी है हमारी ना, वो नहीं जानती कि ये डर असली है या नकली है। वो सामने शेर को देख के जैसे डरती थी ना, थॉट्स में आपने डर सोचा नौकरी के खो जाने का ना, उसको भी रियल डर की तरह ही लेती है। अब जब रियल डर की तरह लेती है तो माइंड जो थॉट सोच रहा होता है उसके मुताबिक जिस्म जो होता है ना हार्मोन्स खारिज कर देता है, आपके जिस्म में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तब क्या होता था कि जिसमें हार्मोन खारिज हुए तो वो इस्तेमाल हो गए भागने में या लड़ने में, फाइट और फ्लाइट में, वो इस्तेमाल हो गए। अब आप लड़ते नहीं हैं रियल में, साइकोलॉजिकल दिमाग की सतह पर थाट सोचे हैं, जिसमें रिएक्शन दे दिए, क्या लड़ेंगे, दरिंदा तो है नहीं कि आप भागें, नौकरी आपसे छीनने वाली है। सपोज आप किसी ओहदे पर बैठे हैं, वो ओहदा ख़त्म होने वाला है, छीनने वाला है, कोई आपसे ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन ले रहा है, इसके नतीजे में आप भागेंगे तो नहीं, लड़ेंगे तो नहीं, लेकिन आपके जिस्म में वो सारी की सारी हार्मोनल एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, वो यूज़ कहीं नहीं हुई, वो एनर्जी अपने आपके जिस्म में ही अंदर हरकत कर रही है। ये जो इंसान के जिस्म के साथ ज़्यादा मसाइल होना शुरू हो गए हैं, ये बेसिक रीज़न यही है। ये बीपी हो गए, हार्ट के मसाइल हो गए ना, ये सारे के सारे इन नाजायज़ डरों की वजह से, खौफों की, फियर्स की वजह से ना आप में रिलीज़ हो रहे हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस्तेमाल हो जाते तो वो नॉर्मल था। अब माइंड को ना, जिस्म को पता नहीं होता कि माइंड में जस्ट आप थॉट सोच रहे हैं या रियल में आप वो काम कर रहे हैं। दौड़ के बारे में सोचें या दौड़ें, अंदरूनी तौर पे जो हार्मोनल एक्टिविटी है वो सेम रहती है। खाना खा रहे हों या खाने के बारे में सोच रहे हों, जिनसी अमल कर रहे हों या जिनसी अमल के बारे में सोच रहे हों, हार्मोनल एक्टिविटी सेम रहेगी। वहाँ रियल शेर थे, आप रियली मुकाबला करते थे या दौड़ते थे। यहाँ नकली शेर हैं, आप रियली मुकाबला नहीं करते, रियली दौड़ते नहीं हैं। फाइट और फ्लाइट एट बॉडी लेवल होती नहीं है, एट मेंटल लेवल होती है। ये सारी के सारे खौफ जब ईगो क्रिएट कर लेती है ना, माइंड क्रिएट कर लेता है, वैसे ईगो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। आपका अनरियल सेल्फ जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। आपका रियल सेल्फ से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आज के दौर को देखूँ ना, तो जितने भी खौफ हैं ना, वो सारे नकली हैं, मेंटल है, सारे के सारे मेंटल हैं, और माइंड सारे का सारा नकली है। नकली ये कि नहीं है, नकली यूं कि आपने सीख लिया है, अपनी सोसाइटी के मुताबिक आपने सीख लिया है। आपकी एग्जिस्टेंस की ज़रूरत नहीं थी, आपकी सोसाइटी की ज़रूरत थी। सोसाइटी आपको कहती है कामयाब लोगों को मैं अप्रूव करती हूँ, मैं कबूल करती हूँ, नाकाम लोगों को मैं रिजेक्ट करती हूँ। सोसाइटी बताती है कि आपकी बैंक में ज़्यादा पैसे हैं तो आप ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे कम हैं, आप कम मुअज़्ज़ज़ हैं। आपकी ज़िंदगी के तजर्बे से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये सारी सोसाइटी की ज़रूरत है। इस वक्त आपके जो खौफ हैं वो सारे के सारे सोसाइटी की ज़रूरियात पूरी ना कर पाया तो ये वो डर है। तब जो खौफ थे वो रियल थे। तो रियल खौफ जो नेचर ने क्रिएट किया, उसकी बाकायदा वजूहात थी, आपके सर्वाइवल की वो ज़रूरतें थी। आपने एज अ सोशल एनिमल जो खौफ ईजाद किए हैं वो सारे नकली हैं, सारे के सारे। आप किसी अपने एक भी खौफ को उठा कर देख लें ना, उसमें कहीं भी कोई जान नहीं मिलेगी। तो इसकी जड़ क्या है? मतलब ये फिजिकल खौफ जो जड़ तो बेसिकली ये है कि नेचर की स्कीम में तो ये है ना कि डर, ये मेंटल में कन्वर्ट ही कैसे हुआ? क्योंकि आप एक अरसे तक रहे, आपके पास टेंडेंसी है कि आप एक चीज़ को जब बहुत अरसे तक जीते हैं ना, वो आदत बन जाती है। आपने डरना सीख लिया, तब डर की ज़रूरत थी, और डरना जो आपने सीखा वो आपके काम आया। अब आप उसके साथ इतना अरसा रहे कि जब वो सिचुएशंस ऑन ग्राउंड ख़त्म हो गई तो साइकोलॉजी उस डर को छोड़ने पर तैयार नहीं थी। दिमाग हमेशा सेट पैटर्न्स में कंफर्टेबली काम करता है। पहले कंफर्ट जोन क्रिएट करता है, आदत तश्कील देता है, और फिर उसके मुताबिक काम करता है। अननोन सिचुएशन हो जाए, अननोन आपके सामने कोई बंदा आ जाए दिमाग के पास जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना,
تو دماغ ڈگمگا جاتا ہے، اس سے نہیں پتہ آپ کیا کرنا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی ایسا جانور آ جائے جس کو آپ نے کبھی پڑھا نہ لکھا نہ سنا، نہ انٹرنیٹ پہ دیکھا، نہ موبائل پہ، نہ ٹی وی پہ، آپ جانتے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ جن جانوروں کو آپ جانتے ہیں کہ کتا آ گیا تو آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، بکری آ گئی کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، سامنے ہاتھی آ جائے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہیں۔ ان نون جب سامنے آتا ہے نا تو مائنڈ کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ اس لیے مائنڈ کا کمفرٹ زون ہے ہیبٹس جینا، عادتیں جینا۔ مائنڈ کے ذریعے سے اگر آپ زندگی جی رہے ہیں تو آپ زندہ زندگی نہیں جی رہے، آپ عادتوں کو جی رہے ہیں۔ آپ نے ایک لیبل تراشا، اس لیبل رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ نے پین یا پلیئر اٹیچ کر دیا ہے، دکھ یا سکھ۔ آپ سارا دن یہی کر رہے ہیں کہ وہ جہاں سے دکھ آتا ہے اس سے بچنا ہے، جہاں سے سکھ آتا ہے اس کی طرف بھاگنا ہے۔ یہ عادت کی غلامی ہے، یہ مائنڈ کی ڈومیننس ہے۔ مائنڈ جو عادتوں میں کام کرتا ہے، عادتوں کے فیلڈ میں رہتا ہے۔ زندگی کو جو ہے نا کہہ لیں بینگ جب انرجیٹک فیل کرتی ہے نا، وہ آلویز نئی سچویشن ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی، اس وقت جو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، وہ صرف مائنڈ کی خوشی نہیں ہوتی، پوری باڈی کی ہوتی ہے، پوری ایگزسٹنس، آپ پورے وجود سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کا سٹیٹس بدل گیا، پروموشن ہو گئی، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر سے ڈائریکٹر بن گئے۔ ایک نئی سچویشن ہے، نئی طریقے سے آپ جئیں گے، نئی حالت ہے آپ کی، نئی سٹیٹ ہے آپ کی، تو اس میں آپ کو کچھ دن تک انرجی ملتی رہے گی۔ بورڈم تب شروع ہوتا ہے جب وہ عادت میں ڈھلتا ہے، روٹین میں آپ وہ جانا شروع کر دیتے ہیں، تو اب وہ روٹین کی چیز ہو گئی۔ نیا مکان آپ بنا کے بیٹھے 4 دن، بڑا مزہ آتا ہے، پھر اس کے بعد وہی مکان ہے پڑا ہے، اس کی طرف دیکھتے نہیں۔ نئی گاڑی لیتے ہیں تو بڑی کیسے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی پرانی ہو جاتی ہے، روٹین میں ہو جاتی ہے، عادت میں ڈھل جاتی ہے۔ مائنڈ کے لیے تو کمفرٹیبل ہے، مائنڈ جانتا ہے کہ باہر نکلوں گا، گاڑی کھڑی ہوگی، اس میں بیٹھوں گا، ایسے چلاؤں گا، ڈرائیو کرتا ہو اس میں کوئی۔ لیکن جب آپ نے وہ گاڑی خریدی، اس وقت وہ نیا پن ہے۔ نیا پن میں زندگی جو ہوتی ہے نا، اسے ایک عجیب سی خوشی ملتی ہے۔ یہ آپ جب ایڈونچر کے لیے جاتے ہیں تو ایڈونچر میں کیا ہوتا ہے، خام خواہ کا رسک ہی ہے۔ کیٹو پہاڑ سر کرنے جا رہے ہیں، آپ کو کیا ملنا ہے؟ زمین پہ چل رہے ہیں آپ، پہاڑ پہ چلتے چلتے اونچی جگہ پہ پہنچ گئے، تو آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ مل رہی ہے۔ ایک رسک ہے، پتہ نہیں کہ اب کیا ہوگا، آپ ان نون رستے پر چل رہے ہیں، حالانکہ رستہ ہی ہے، قدم ہی اٹھا رہے ہیں نا۔ شہر کی سڑکوں پہ قدم اٹھاتے ہوئے آپ کو وہ ایڈونچر فیل نہیں ہوتا، کیٹو سر کرتے ہوئے وہ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ سمٹ کے لمحے موجود میں آ جاتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو پورے کا پورا فوکس جو ہے، توجہ اپنی جو ہے وہ اس لمحے پہ رکھنی ہے، کیونکہ وہ توجہ، وہ فوکس ڈگمگایا تو آپ چوٹی سے گریں گے۔ سڑک پہ گرنے سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ آپ کا سیکھا ہوا ہے، جانا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایکچولی میں ان نون سے نہیں ڈرتا، نون سے ڈرتا ہے۔ انا مائنڈ ہمیشہ جو ہے نا نون، اس کی فیلڈ میں رہنا پسند کرتا ہے۔ زندگی کو تو ان نون مزہ دیتا ہے۔ آپ سوچیں نا کہ یہ اس باغ میں ہم بیٹھے ہیں، اس وقت باغ میں اس وقت بھی کوئی پتا ہے جو اگ رہا ہے، کوئی بیج پھوٹ رہا ہے۔ یہ باغ کو خوبصورت بنانے والی چیزیں ہیں، بدصورت کرنے والی چیزیں تھوڑی ہیں۔ زندگی تو اس سے رنگین ہوتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، انرجیٹک ہوتی ہے۔ مائنڈ کو مگر یہ پسند نہیں ہوتا۔ آپ بیڈ سے ایک طرف سے خاص طریقے سے اترتے ہیں، خاص طریقے سے جوتا پہنتے ہیں، وہ عادت بدل جائے تو دماغ کہتا ہے کیا بکواس ہے، میری چیز میری جگہ پہ کیوں نہیں ہے، جوتا میں نے اس طرف اتارا تھا، اس طرف کس نے رکھا۔ آپ اس پہ بھی لڑتے ہیں، میرا چائے کا کپ یہ ہے، دوسرے کپ میں چائے کیوں دی۔ مائنڈ اور ایگو اس طریقے سے کام کرتا ہے۔ لیکن زندگی سے کنیکٹ رہنے کے لیے نیونیس کے لیے پھر ہم مصنوعی طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جیسے ہم ٹورز پہ نکل جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں آپ؟ وہی لوگ ہیں، وہی پتھر ہیں، وہی رستے ہیں، وہی گلیاں ہیں، وہی گھر ہیں، کیا فرق پڑا ہے؟ وہی میٹر ہے، نیونیس کا تجربہ، نیونیس ہے۔ آپ اٹھے، صبح اٹھے، سارا منظر ہی بدلا ہوا ہے، آپ زیادہ زندہ محسوس کرتے ہیں۔ مائنڈ اس وقت بھی کوئی کمفرٹیبل پوزیشن میں تھوڑی ہوتا ہے، لیکن آپ ایز اے ایگزسٹنس، ایز اے وجود نا ذرا زیادہ زندہ محسوس کرتے ہیں۔ تب آپ کہتے ہیں مجھے روح سے خوش ہوں، کہتے ہیں نا جیسے روحانی خوشی مل رہی ہو ایک نئی جگہ پہ نا۔ وہ روحانی خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نئے پن کے سامنے، زندہ پن کے سامنے، زندہ پن جو لائف ہے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ
आप ईगो को जीना चाहते हैं अगर ना, तो उसकी बेस होगी डर। हमेशा हमेशा आपकी ईगो हर वक्त किसी न किसी डर को बुनियाद बनाकर जीती रहती है। नौकरी छूट गई, बिजनेस तबाह हो गया, ये तरक्की ना की, ये इन्वेस्टमेंट की है डूब गई, तो इससे ईगो को बड़ी ताकत मिलती है। और डर के बारे में मैं अपनी वीडियोज़ में भी एक बात करता हूँ कि डर और ज़िंदगी ये दोनों इकट्ठे वाक़ हो नहीं सकते। डरा हुआ बंदा ज़िंदा नहीं होता और ईगो 24 घंटे डरी हुई हालत में होती है। ज़िंदगी हर वक्त डर से आज़ाद होती है। इसलिए ऐसे ट्रिप आपकी ज़िंदगी में, ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको माइंड से या इनडायरेक्टली कह लें अनाज से अलग कर देती हैं, जैसे नशे की हालत है। ड्रग आपके साथ क्या करता है? ईगो को मध्यम कर देता है, मैं और तू की तकसीम को कम से कम कर देता है। दिमागी लेवल बेमानी हो जाते हैं, हर चीज़ गड़बड़ होने लगती है। अच्छा, इवन आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, नई नई चीज़ों को तजर्बा करते हैं, माइंड यकसू हो जाता है। ख़वातीन में ख़ास तौर पर यह आदत होती है। कुछ लोग एडवेंचरस होते हैं, एडवेंचर पे जाते हैं, माइंड की एक्टिविटी कम से कम हो जाती है, वो सिमट कर लम्हे मौजूद में आ जाते हैं। ज़िंदगी और डर ये दोनों एक साथ कभी नहीं चलते। डर आपकी जबिल्लत की ज़रूरत थी। आज मैं समझता हूँ कि आज के इंसान के जो डर हैं वो जबिल्लती नहीं हैं, वो नफ्सियाती हैं। सारे के सारे जो डर हैं ना, वो नफ्सियाती हैं, वो नेचर के नहीं हैं, वो अनरियल हैं।